So now welcome to Shukla Maths Academy online live classes. And now today this is the live class of the chapter number 4 determinant, and in this class we will discuss about the application of determinant and matrices. Okay, so first we will discuss the application of matrices. We have three equations in x, y, z variables: a1x plus b1y plus c1z equal to, suppose, d1, right? Second equation is a2x plus b2y plus c2z equal to d2, and third equation is a3x plus b3y plus c3z equal to d3. यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं, दीज आर थ्री इक्वेशंस, बट यहाँ पे टू इक्वेशंस भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं समटाइम्स, बट इन जनरल जो थ्री इक्वेशंस है वो हम लेकर चल रहे हैं इन थ्री वेरिएबल्स, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट? दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. First we will find out the coefficient matrix, that is called A. A is the coefficient matrix. So it means the coefficient of x, y, z elements we will take in this matrix, right? And coefficient of x in the first equation is A1. You can also say this A11, but we are taking here A1. So B1 and C1, right? Similarly, in the second row, the coefficient of x, y, z from the second equation are A2, B2 and C2. Okay. And in the third row, and the coefficient of x, y, z from the third equation, these are A3, B3 and C3, right? So that is called coefficient matrix A, right? And here one column matrix capital X, right? That is contains the variables x, y, z. Remember that this is the column matrix, right? And here one more matrix is B. It is also column matrix, that is the constant values of the right hand side of the equation. These are the D1, D2 and D3. So we will take D1, D2, D3 column matrix in B. And D2, that is D2 and D3. Okay. सर ये D1, D2, D3 क्या है? हाँ, ये बेटा जो हमारे गिवन इक्वेशंस है ना, उनके जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज रहेंगी कांस्टेंट, ये वाले जो वैल्यूज हैं राइट हैंड साइड में, इनका कॉलम मैट्रिक्स है D1, D2, D3. इसको हम डिनोट करते हैं B से. सो B इक्वल टू D1, D2, D3, राइट? तो ये हमने कैसे लिया बेटा? एक्चुअली जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ये वाला, ये हमारा बेटा Ax इक्वल टू B के फॉर्म में होता है. इसको यदि हम राइट करना चाहें मैट्रिक्स फॉर्म में ना, सो दैट इज Ax इक्वल टू B होता है. ये ध्यान रखना. यदि आप Ax और B का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको जो इक्वेशन है ये मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, इसमें कुछ पूछना हो तो. We can write the given equation of the form Ax equal to B, right? Where A is the coefficient matrix this, and X is the variable column matrix, and capital B is the right hand side constant matrix, column matrix. Okay. Okay. After that, we will discuss how we will solve system of equations by using matrix method. So now see here. Because our given system of equation is given of the form Ax equal to B, right? यहाँ पे जो फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स बोथ द साइड्स, राइट? बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए बेटा. A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में इन Ax एंड इक्वल टू, ये मिल जाएगा हमें A इनवर्स इनटू B. ओके. सो आफ्टर दैट वी नो दैट the product of three matrices
follow the associative law. So by associative law, we can write this A inverse into A or into X equal to A inverse B. Okay. So we know that A inverse into A is I into X as it is. So equal to A inverse B, right? So I into X is X equal to A inverse B, right? So this is our formula. Remember that this is very important formula. बट ये हमें यूज करने के लिए बेटा मैं ए इनवर्स पहले फाइंड करना होगा. जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो मालूम होनी चाहिए, राइट, एंड देन बी तो हमें मालूम हो जाएगा. आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ these values in the formula x equal to a inverse b. तो ये मैं सिंपल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ. x की वैल्यू हमारी हो जाएंगी वेरिएबल में एक्स वाई जेड है, समटाइम्स कुछ और भी हो सकते हैं बट जनरली एक्स वाई जेड रहते हैं. इक्वल टू ए इनवर्स बी. ए इनवर्स हमारा जो भी मैट्रिक्स आएगा वो हम यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. देन बी जो है आपने जो पूछा था अभी राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज रहेंगे कॉलम मैट्रिक्स वो हम ले लेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना. तो हमें एक सिंगल जो मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा. और ये हमारे 3 इक्वेशंस हैं तो ये 3 क्रॉस 3 का मिलेगा, राइट. एंड देन आफ्टर दैट वी विल इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोथ द साइड्स विच वी गिव द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई एंड वैल्यू ऑफ जेड एट द लास्ट. सो इट विल बी अवर आंसर बाय दिस मेथड. ये मतलब मैंने आपको शॉर्ट में जो मेथड है एक्सप्लेन की, फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ठीक है ना. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरा हो जाएगा क्लियर. So now see here the question is that examine the consistency of the system of equations. One more thing here, what is the consistency? Consistency means the given systems have a unique solution or many solutions, otherwise it has no solution, right. यहाँ पे क्या है जो consistency कब होगी, if हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा ए, ये हमारा नॉट जीरो होना चाहिए, राइट. तो क्या होगा हमारा, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट. एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. हम ये बोले सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, राइट, इन जनरल. क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि जीरो मिल जाएगा तो जो एडजॉइंट ए जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. देन सिस्टम ऑफ जो सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, राइट. तो अभी उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये अपन देखते हैं. तो क्या किया जाए, पहले सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन वी कैन राइट ऑफ द फॉर्म, we can write कितना लिख दो इसमें, ax equal to b form, right. ax equal to b means a is the coefficient matrix into x is the column variable matrix equal to right hand side is the b. okay, तो यहाँ कितना मिल जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट क्या होंगे हमारे इसमें x y z. x y के यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. देन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 2 है और ये 3 है. इंटू एक्स, एक्स का मतलब है कैपिटल एक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहा है कि वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स. हमारे यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 ही है. जितने इक्वेशंस होंगे उतने वेरिएबल होंगे, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स है, एक्स स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. तो हम कॉलम वाइज जो कॉलम मैट्रिक्स है हमारी कैपिटल एक्स उसमें ले लेंगे. इक्वल टू बी हमारा यहाँ पे क्या है 2 and 3 है. सो अवर गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी. So we can write the given equation in this form matrix ax equal to b form. Where a is, अब आपको यहाँ बताना होगा where a क्या है हमारा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है. एक बार लिख देते हैं फिर से 1 2 2 3 एंड x हमारा कैपिटल x जो है वो क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, x और y यहाँ पे वेरिएबल्स है, कॉलम वेरिएबल मैट्रिक्स है, राइट. एंड हमारा b क्या है यहाँ पे, b इज द कॉलम कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स ऑफ द राइट हैंड साइड इन द इक्वेशन 2 3. तो ये तो हो गया. अब इसको हमें सॉल्व करना है. मींस सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है बेटा क्या होता है, बिकॉज वी हैव द फार्मूला बाय मैट्रिक्स मेथड.
by matrix method x इक्वल टू a इनवर्स b है। ये जो फार्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, और फिर इसमें जो टर्म्स आ रही जो भी ऐसे a इनवर्स और b आ रहा है ये मालूम होना चाहिए। तो हमें अब a इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। फॉर a इनवर्स our coefficient matrix A equal to, so it is 1 2 and 2 3। तो सबसे पहले काम तो ये है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है ये हम फाइंड करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट A निकालने के बाद हमें उससे डिवाइड करना होता है, तो मिलता है हमें A इनवर्स। कितना मिल जाएगा बेटा हमें ये, दैट इज 3 माइनस 4 दैट इज -1, ठीक है। एंड नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स, ठीक है ना। तो कोफैक्टर्स फाइंड करना है ऑफ A11। अब थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, A11 मतलब 1 है, तो 1 का जो कोफैक्टर होगा क्या होगा बेटा हमारा -1 1 + 1 प्लस में आएगा ये, और जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे 3 मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। देन कोफैक्टर ऑफ 8 12 है ना, ये हम शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो 8 12 हमारा क्या है 2 है, जो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो ये 2 लेंगे, और साइन कौन सा आएगा माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 2 की जो वैल्यू है -1 + 2 3 आएगा। सिमिलरली A21 जो 2 है हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका निकालेंगे कोफैक्टर तो 2 आएगा, साइन कौन सा आएगा यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 3 ऑड नंबर आएगा। और A22 का जो कोफैक्टर है वो कितना मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 + 2 क्या होता है प्लस इवन नंबर होता है -1/4, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया है, कोफैक्टर्स आ गए। अब इनको बेटा हमें, अभी हमने रो वाइज निकाले हैं, अब इनको कॉलम वाइज अरेंज करेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है ना। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज जो लेते हैं दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो एडजॉइंट ए फाइंड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो कोफैक्टर्स आए हैं उनको हम कॉलम वाइज अरेंज कर देंगे, 2 2 के पेयर में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो ये 3 -2 एंड -2 और 1 आ गया, यानी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए। तो ये आ गया। Therefore A इनवर्स अब हम फाइंड कर लेते हैं, क्या होता है हमारा फार्मूला, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो हमारा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। वो कितना आया था -1 आया था, तो 1/1 हम -1 कर दे रहे हैं यहाँ पे, और इनटू कर दे रहे हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा 3 -2 एंड -2 एंड 1, ओके। तो -1/-1 मीन्स -1 आएगा, तो माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं होल मैट्रिक्स में, साइन चेंज हो जाएगा -3, ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, फिर आगे चलते हैं। नहीं सर, हो गया। ओके ना, हाँ। देयरफॉर इनवर्स हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स, सो बाय फार्मूला x इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, ए इनवर्स b, ठीक है ना। तो x हमारा क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए इनकी। x हमारा कॉलम वेरिएबल मैट्रिक्स है, अभी यहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं तो xy ले लेंगे। ए इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है, इनटू जो b है, b जो राइट हैंड साइड के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है -3 2, ये हम पुट कर देंगे 2 3। बस हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सेम रहेगा ये कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, राइट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस क्या है 2 है, और ये 2 क्रॉस 1, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, हमें 2 क्रॉस 1 का ही मिलेगा मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 1। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 और +2 × 3 6, तो -3 × 2 एना सीधा इसको 6 कर देते हैं, और +2 × 3 6, ठीक है ना। और सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो ये 4 - 3 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, ये एक्स वाई इक्वल टू that is 0, that is 1. So these two matrices are equal, so their corresponding elements are also equal. So this gives, on equating the corresponding elements, x equal to 0 and y equal to 1.
So our solution is x equal to 0 and y equal to, so this is our answer. ये आप चेक कर सकते हो, जो हमारे गिवन इक्वेशंस थे ना, उस पर यदि हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वैल्यू सेम आनी चाहिए. चेक कर लेते हैं. x प्लस 2y है, x हमारा कितना हो गया 0 हो गया और y कितना 1 है ना. यदि हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो बोथ साइड्स हमारे इक्वल हो रहे हैं इन फर्स्ट इक्वेशन में. सिमिलरली वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट टर्म. It will be 0 and plus 3 into y, it is 3 into 1 1. So 3 equal to 3, both sides are equal. So our test is confirmed that our solution is right.